હાય, હું છું કાજલ અને આજે મને ખબર છે તમે બધા જ પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છો સુભાષ ઘાઈની, ગ્રેટેસ્ટ શોમેન ઓફ હિઝ ટાઈમ એન્ડ જેમણે આપણને સુંદર ફિલ્મો આપી, હીરો, પરદેશ, કર્ઝ, આવી અદ્ભુત ફિલ્મો જેણે આપણને આપી, જે એમના સમયના ગ્રેટેસ્ટ શોમેન રહ્યા છે, જેમણે એક વખત સિનેમા સાથે પોતાનો સંબંધ તૂટે નહીં એટલા ખાતર સિનેમા સ્કૂલની સ્થાપના કરી, વિસ્લિંગ વુડ્સ જેવી સંસ્થા જેમણે સ્થાપી છે, એવા સુભાષ ઘાઈને આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું. કાલે વિક્રમ ભટ્ટે બહુ સરસ વાત કરી. એમણે કહ્યું કે એક માણસ સ્ટોરી ટેલર હોય છે, ડિરેક્ટર તો પછી બને છે, પહેલા એને પોતાની વાર્તા કહેવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ અને એ વાર્તા જે એ કહી રહ્યો છે એ વાર્તા સાથે એ કન્વિન્સ્ડ છે કે નહીં, એને એ વાર્તામાં રસ છે કે નહીં. જે લોકો નવા લેખકો બનવા માંગે છે, જે લોકો નવી ફિલ્મો કરવા માંગે છે, એ બધા નવા જમાનાના નવી પેઢીના છોકરાઓને મારે આ કહેવું છે કે બિલીવ ઇન યોર સ્ટોરી. હું આજે જ્યાં પણ પહોંચી છું કે જે પણ કરી રહી છું, કારણ કે મને મારી વાર્તામાં વિશ્વાસ છે. હું જે કહી રહી છું એ કાં તો હું જીવી છું, કાં તો મેં અનુભવ્યું છે, કાં તો હું એમાંથી પસાર થઈ છું. કાલે વિક્રમ ભટ્ટે કહ્યું કે સ્પિરિટ્સ હોય છે. હવે જ્યારે એક માણસ હોરર ફિલ્મો બનાવે છે અથવા સ્પિરિટ્સની ફિલ્મો બનાવે છે, ત્યારે જો એ બિલીફ વગર બનાવે તો હું માનું છું એ ફિલ્મોમાં આ સ્વાદ, આ રસ, આ મજા રહે જ નહીં, કારણ કે એ ફિલ્મોમાં એમનો પોતાનો જ વિશ્વાસ નથી. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બિલીવ ઇન વોટ યુ આર મેકિંગ. એ સૌથી મોટી વાત કાલે એમણે કરી. ક્રાઇમ 2020ના જતીનભાઈ એપિસોડ્સ હવે એક જ છે, આવતીકાલે છે, અને પછી અમે ક્રાઇમ 2020 મોસ્ટલી બંધ કરીશું. છતાં લોકોની ડિમાન્ડ હશે તો કદાચ એ વિશે પણ વિચાર કરીશું. થેન્ક યુ જતીનભાઈ. કાલીચરણ, યસ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ ફિલ્મ્સ. ગૌતમ ગોવિંદા, આઈ બિલીવ તમે તો મારાથી પણ વધારે જાણો છો. રાજેશભાઈ સુભાષ ઘાઈના ફેન લાગો છો. સુભાષજી હમણાં આવશે, હું એમની જ પ્રતીક્ષા કરી રહી છું. હી શુડ ગેટ લાઈવ એની મિનિટ. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર હિમ. આપણે એમને ફોન કરી જોઈએ કે શું થયું. યસ, આરજે મોહન મોદી, સાચી વાત છે. બે જણા સુખ માટે ભેગા થાય અને સુખી થવા માટે જ અંતે બે જણા છૂટા પડે. કાલે વિક્રમ ભટ્ટે બહુ સરસ વાત કરી. 2 મિનિટ મને એક્સક્યુઝ કરજો. હું સુભાષજીને હું રાહ જોઈ રહી છું સુભાષ ઘાઈ સરની. આ વાંચવા માટે જ મેં ચશ્મા પહેરી રાખ્યા છે કે સુભાષ ઘાઈ સરનો મેસેજ આવે તો જતો ના રહે. પણ એક વાત મારે જે કહેવી છે કે એમના જીવનમાં પણ બહુ સંઘર્ષ હતો. એક્ટર બનવા આવેલા, આપણે બધા એમના વિશે આમ તો બધું જાણીએ જ છીએ, પણ એક્ટર બનવા આવેલા, લેખક બનવા માટેની ટિપ્સ જોઈએ છે મેહુલભાઈને. મેહુલભાઈ, લેખક બનવા માટેની એક સૌથી મહત્વની ટીપ એ છે કે તમારી પોતાની વાતમાં વિશ્વાસ કરો, તમારા શબ્દમાં વિશ્વાસ કરો. એમણે 2 સિનિયર્સને ભેગા કર્યા. યસ યોગેશભાઈ, તમારી વાત સાચી છે. દિલીપ કુમાર અને રાજકુમારને ભેગા કરવા એ સરળ વાત નહોતી. બહુ જ સરસ તમારા બધાના ઇન્ફોર્મેશન છે, અને હું ઇન્ફોર્મેશન તો તમારી પાસેથી ક્યાં માંગવાની અને ક્યાં તમને આપવાની. તમે બધા મારાથી વધુ જાણીતા છો, જાણતા છો. પણ સવાલ એ છે કે મારે આજે આવા મોટા લેજેન્ડરી વ્યક્તિત્વને પૂછવું છે કે એમણે લોકડાઉનમાં શું કર્યું, નિરાશાના સમયમાં શું કર્યું. એમણે પણ ફેલિયર જોયા છે. એવું નથી કે એમણે કોઈ ફ્લોપ નથી જોઈ, એમણે કોઈ ફેલિયર નથી જોયા. કાલે વિક્રમભાઈએ પણ કહ્યું કે મેં 10 ફ્લોપ એક સામટી જોઈ. સળંગ 10 ફ્લોપ 6 વર્ષમાં. એક માણસ તૂટી જાય એવું નક્કી કરી લે કે ફિલ્મ લાઈન છોડો, ક્યાંક નોકરી લઈ લો, પણ એને બદલે એમણે એવું નક્કી કર્યું કે હું એક હજી ફિલ્મ બનાવીશ. So I think it's a wonderful thing that one can do. Believe in yourself. Sir, pranam, namaste. नमस्कार काजल जी. नमस्ते सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है. मैं थ्रिल्ड हूं सर आपको देखकर यहाँ.
मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ आपकी। कैसे हैं और आप? आपने हमेशा, जब भी मैंने कहा मेरी हेल्प के लिए आप आए हैं। एक गाना जब हम बना रहे थे आज से करीब 20 साल पहले, तब आपने मुझे कितने सारे एक्टर्स ऑर्गेनाइज करके दिए थे। जी आज हाँ, भी आप बिल्कुल याद सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो मैं बहुत दिलो तहे है। दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ सर। आप खुद एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे फिलोसफर हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं। अपना ख्यालात जो हैं अहमदाबाद के लोगों को, इस देश के लोगों को कितने अच्छे अच्छे आप स्वाभाविक चीजें बता रहे हैं, एक शेयर कर रहे हैं। और आजकल लॉकडाउन में तो सबको जरूरत है कि हम एक दूसरे से बात करें और समझें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक स्टेट ऐसी है कि इस वक्त हम लोग थोड़े से कंफ्यूजन है। लेकिन हमारे भारतीय लोगों का चरित्र जो है वो है तो बहुत स्ट्रांग। वो जी गरीबी सर। से गरीबी में रह सकते हैं, तूफान में भी रह सकते हैं, पत्थरों को भी झेल सकते हैं, पहाड़ों को झेल सकते हैं। लेकिन जी एक सर। समय आता है कि जब उनको सामूहिक तरीके से रहना पड़ता है, एक कलेक्टिवली एक परिवार के साथ जुड़ना पड़ता है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना पड़ता है। तो उसको अपने से ज्यादा चिंता अपने बच्चों की होती है, अपने परिवार की होती है, अपने साथियों की होती है। तो ये एक सवाल उठता है कि टू बी और नॉट टू बी, क्या किया जाए और क्या सहा जाए। हमारी माँ ने कितने भी हमें सिद्धांत बताए हों कि बेटा ये करना है, ये मुसीबत में ऐसा करना है, हमें सब मालूम है, हम कर भी लेते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद आज भी जब क्राइसिस आता है मुझे, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सही सोच बात तो है सर। जी। अब आप पूछिए मुझसे सवाल, आप क्या चाहते हैं? सवाल सर आपसे मैं क्या पूछूंगी, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप इतने 2 महीने में क्या आप करते रहे। मेरे मेरे सारे दर्शक देखिए कितने लोग लॉक्ड इन है आपके लिए। सब जानना चाहेंगे कि 2 महीने में आपने क्या, सर आप क्या करते रहे, क्योंकि आप तो बहुत ही बिजी पर्सन है। कॉलेज जाते हैं, विस्लिंग वुड्स जाते हैं, कितने लोगों को गाइड करते हैं, पूरा दिन आपका व्यस्त होता है। अब जब ये दिन खाली हो जाता है तो घर पर रहकर आपने क्या ये 2 महीनों में किया। मेरे जीवन में मैंने बचपन से एक चीज सीखी है काजल जी, जी सर। जी कि सर। जब भी आपके ऊपर क्राइसिस आए, उसको एक नई अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए, पहला काम यही सोचना चाहिए। क्राइसिस का मतलब ये नहीं क्या कि बात। आप उसके आप सोचे कि अभी हॉलीडे आ गए, या अभी आराम हो गया, या अभी पॉज है। जब आपने पॉज दिया और चलते चलते आप बैठ गए, तो आप थक जाएंगे। अब चलना है, लेकिन जगह वो एक चौराहे पे खड़े हो गए हैं, कहीं तो चलना है। तो जब आप क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं, तो ही आपका जीवन जो है आगे बढ़ता है। और आप उसी उत्साह और उसी युवा युवा वृत्ति से चलते हैं। और ये मैंने बचपन से सीखा है, और बहुत से क्राइसिस आए हमारी लाइफ में। और जब ये लॉकडाउन का क्राइसिस आया, तो मुझे कहा कि वाह, ये भी क्राइसिस आना था, चलो वाह, क्या बात है सर, वाह बोल रहे हैं आप लॉकडाउन को। इसको भी झेलते। पहली बार सुना किसी को लॉकडाउन के बारे में वाह कहते हुए। क्या बात है, क्या बात है, मैंने कहा लॉकडाउन मिला है, एक कंपल्सरी हॉलिडे मिली है, जी सर। कंपल बैन किया गया है आपको काम ना करने के लिए, जबकि हम लोग 10 घंटे काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी इन्हीं लॉकडाउन के दिनों में 10 घंटे तो काम करूंगा, कुछ भी हो जाए। अब लॉकडाउन में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि आप अपने घर में रहिए, और घर में आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास टीवी भी है, परिवार भी है। ये तीन चीजें तो हैं। उसके बाद आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप देखिए कि अगर हम पहले जमाने में लॉकडाउन हुआ होता, तो आप शायद मुझसे बात भी ना कर सकते। हम मैं जी इन सर। भाइयों जी बहनों को मिल भी ना सकता। तो मैंने पहले ये वो सोचा कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं उन चीजों को जानूं जो चीजें मैंने नहीं जानी थी। मैं पढ़ना शुरू करूं, इसी कि कौन सी ऐसे विषय हैं जो मैंने सीखे नहीं। जैसे हम धर्म की बात करते हैं या धर्म पे डिबेट करते हैं, तो मैंने सबसे पहले नेट पे सब धर्मों के बारे में पढ़ा कि सब धर्म का एक्चुअली मतलब क्या है। वो क्या बात है सर। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, उनके टेक्सचर क्या है, उसको पॉलिटिकलाइज कैसे किया गया। धर्म में तो इतने शांति प्रेम सब धर्म कहते हैं, तो लेकिन हम क्यों लड़ते रहते हैं? हमेशा धर्म के नाम से ही हमें अशांति नाम का एक
शब्द सामने आ जाता है, एक रेस्टलेस आ जी जाती है। तो मैंने उसको बहुत स्टडी किया, मैंने गुरुवाणी को स्टडी किया, ग्रंथ साहब को किया, इस्लाम को किया स्टडी, बहुत क्रिश्चियनिटी को किया, हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में तो मैं बचपन से जानता भी हूँ और सनातन धर्म स्कूल में पढ़ा हूँ और उसके बारे में मुझे ज्ञान भी है कि हमारा जो धर्म है एक फिलॉसफी है अपने आप में, जो कि एक मानवता और पूरे विश्व को वैश्विक शक्तियों का आदर करते हुए अपनी धरती माँ को माँ समझती है ना। जी जी ये मैंने स्टडी किया। फिर मैंने स्टडी किया कि आजकल नाटक कैसे चल रहे हैं। मैंने सब वेब सीरीज देखनी शुरू की कि भी आज के बच्चे जो हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, आज के हालांकि कि उनकी क्या जबान हो गई मतलब है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है सर कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी का काम देखें। मतलब जिसका भी देखा होगा, मुझे लगता है उसका तो नसीब खुल गया कि पर्सन लाइक यू, अ डायरेक्टर लेजेंड लाइक यू, वॉचेस समबडीज वर्क। क्योंकि सबसे नहीं पहला तो जरूरी, मैं जनरली कहता हूँ कि आप जनरली सब सर लोग सिर्फ रिडिक्यूल करते, नई पीढ़ी बिल्कुल, अच्छा नहीं बना रही है, ऐसा क्या कर रही है। बिल्कुल नहीं, सो बहुत अच्छा जी बना रही है। जी जब आप जी अपने जी बच्चों को ये समझेंगे, जब आप बच्चों को समझे किसी प्रॉब्लम हमारी 20वीं सदी के लोगों की ये है, माँ बाप की, सबकी जी प्रॉब्लम है जी जी कि हम 20वीं सदी में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है 20वीं सदी के हों, जैसे हमारे बाप दादा चाहते थे कि हम 19वीं सदी के हों। सही क्योंकि बात। हमने हमने जीवन जिया है, यू नो। हम, अब वो लोग जो थे वो बैलगाड़ियों के लोग थे, उससे पहले घोड़े पे चलते थे लोग इसी। हाँ, अभी फिर मोटरसाइकिल आए, फिर गाड़ी आई, प्लेन आए, आज क्या से क्या हो चुका है। तो जो जी समय सर। अनुसार जो चीज होती है, इसी परिवर्तन, जब आप कहते हैं कि जीवन परिवर्तन जीवन का नियम है, तो इस नियम को अपनाइए। तो ये बच्चे जो नए आए हैं ये परिवर्तन ही है, ये परिवर्तन है हमारे मूल्यों का, हमारे समाज का, हमारे टेक्सचर का। तो उन्हें आप एक स्वीकृति दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। बल्कि आप खुश नसीब हैं माँ बाप, जब आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों के द्वारा, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, उनके द्वारा एक परिवर्तन देख सकते हैं। मेरी एक 18 साल की बेटी है मुस्कान, वो जी मैं जी आज 2 महीने से मैं हर बार लंच में उसके साथ जरूर बैठता हूँ और हम लोग आधा पौना घंटा डिस्कस करते हैं। मैंने जो 18 साल में अपनी बेटी को नहीं देखा, वो मैंने 60 दिन में देख लिया और उसके सारे विचारों को जाना। हम एक दोस्त बने, हमने हर विचार के ऊपर विचार विमर्श किया कि बहुत जीवन बड़ी बात है सर। होने वाला क्या है। तो मैंने सबसे मुझे पहले लगता है ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को जानिए। वंडरफुल अपने सर, आई एम सो अपने टच्ड। अपने बच्चों को मित्र बनाइए, मित्र बनाइए, और ऐसा मित्र बनाइए जैसे कि, लेकिन मित्र बनाने के लिए आपको उसके सभी बातों को पहले मानना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू डिसएग्री। पहले आप एग्री यस कीजिए सर। कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है, तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन इसका मेरे को रैशनलाइजेशन जरा, एक मेरे को इसका प्रमाण दे बताओ। दो कि भाई ये सही ठीक बात। है या नहीं। ये इंसान के लिए दो चीजें चाहिए, एक हैप्पीनेस और एक हेल्थ। अगर वो खुश है और हेल्दी है तो ये लॉजिक ठीक है, बाकी कोई जी सर। लॉजिक नहीं है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, मैं और मेरी बेटी, यानी यंगर जनरेशन। वैसे भी मैं विस्लिंगवुड जो फिल्म स्कूल है बॉम्बे में, फिल्म सिटी में, आप जानते हैं मैं 12,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे इंटरेक्ट तो हाँ, करता, मतलब बच्चों के साथ लेकिन तो आप डील करते ही हैं। जी हाँ, लेकिन वो सब क्रिएटिव लोग हैं, तो आर्टिस्ट हैं। तो वो थोड़े से आर्टिस्ट लोग जो हैं वो एक एक दिशा ऊपर होते हैं, एक दर्जा ऊपर सोचते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव हैं, वो भविष्य के बारे में बहुत ही आगे चले जाते हैं। लेकिन जी जी सामाजिक जो अवस्था आज की है, वो आज की अवस्था जो है वो 2020 है, ये 1990 नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा सोचता था ना, आज तो नहीं। आज मेरी सोच इन बच्चों से मिलना, मैं वेब सीरीज देखता हूँ या आज की फिल्में देखता हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि ये भी एक रूप है और इस रूप को अब स्वीकार करना है। और ये इनके जो बच्चे होंगे, मैं आपको आज कह देता हूँ, आज मैं कह के जा रहा हूँ आपके सामने और क्लेम करता हूँ कि 2050 में भारत में बच्चे लोग, आपके बच्चे लोग संस्कृत बोलेंगे। अब ये मानेंगे नहीं आप। मुझे विश्वास है, मुझे भी इस संस्कृत, बात का विश्वास है सर। क्यों संस्कृत बोलेंगे आप बताइए। क्योंकि हम बेसिक की तरफ लौट रहे हैं सर। हम पूरा दुनिया घूम के, पश्चिम होकर के सब कुछ
जान करके, पहचान करके अब हमें रियलाइज हुआ है कि हमें हमारे रूट्स की तरफ लौटना चाहिए। लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, लोग अपने आप को नहीं, बदल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो जो शायद हमारे हमारे पुराणों ने कहा था, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और काजल जी, ये तो आप और मैं सोचते हैं ना, वो 18 साल का बच्चा कहाँ सोचता है? वो तो चाहता है मैं अमेरिकन अमेरिकन बनूं, वो तो चाहता है मैं वेस्टर्न बनूं, है, वो तो चाहता है कि मेरा ये स्टाइल होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, है ना। अब उसको समझ आ गई आज के बच्चे को लॉकडाउन में कि अमेरिका भी बनने से कुछ फायदा नहीं है, सब क्योंकि बंद है। तकदीर नहीं, तकदीर के आगे जो है सब परास्त है। तो सही अच्छा बात। जीवन, सुखी जीवन, शांत जीवन जीने के लिए मुझे अपने भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो बिल्कुल मूल्य, सही। आज देखिए हमारा भारत ने इतने बड़े क्राइसिस को सहा है, और मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से, आप छोड़ दीजिए 2% 4%, तो हर जगह वो टेढ़ा मेढ़ा होता ही है, डिफेक्टिव होता है, लेकिन मैं हैट्स ऑफ टू ऑल अवर इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर्स, दे हैव टेकन दिस एज ए स्ट्राइड। इस लॉकडाउन के अंदर उन्होंने अपना बहुत संयम दिखाया है, और इसमें उन्होंने अपना रेट्रोस्पेक्टिव किया है, जी आध्यात्मिक सर। से अपना दृष्टिकोण को समझा है। आज उन्होंने अपने परिवार को ध्यान से देखा है, बच्चों ने अपने माँ बाप को ध्यान से देखा है, माँ बाप ने अपने बच्चों को ध्यान से देखा है। आप देखिए जी जी। कितनी, आज हमें पता लग गया है कि फैशन वैशन कुछ नहीं, 2 कपड़ों में भी हम काम चला सकते हैं। आज हमें शूज की जरूरत नहीं, चप्पल में भी काम। आज हमें एक सही 10 बात है सर। की जरूरत नहीं, एक घर में भी काम चला सकते हैं। अबे आज हमें सही मालूम, बात। मतलब जो है उसमें ही जीना होगा, ये लॉकडाउन ने सिखा दिया सर। सब तो कुछ ये सिखा। लॉकडाउन से जुड़ी एक बात आपसे पूछना चाहूंगी सर, कि कल हम विक्रम भट्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 6 साल में 10 फ्लॉप दिए, और मुझे अपने आप से भी एक बार ये सवाल पूछना पड़ा कि मुझे सिनेमा के साथ जुड़े रहना है कि नहीं। तो आपकी भी जब फिल्म आपने सोची हो उतनी नहीं चले या कभी फ्लॉप हो जाए, तो निराशा की उस क्षणों में क्या सोचते हैं आप? जब मैं व्हाट फिल्म कीप्स यू की गोइंग, दैट इज माय क्वेश्चन। जब मैं फिल्मों की कहानी ऐसा लिखता हूँ और दिल से कहानी लिखता हूँ, जब मैं जी। गाने ऐसे लिखता हूँ कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जंग है जाए तू अगर ये संग है, हम, तू अगर जब संग मेरी है, क्या सोच ही बात है ऐसी सर। है, तो ये छोटी छोटी परास्त चीजें, ये छोटी छोटी डिफीट मुझे क्या तंग करेंगी? कुछ नहीं तंग कर सकती। ये डिफीट तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, लेकिन जहां तक स्पिरिट है, वो तो हम लोग कहानियां प्रेरणा देते हैं लोगों को कि उठे तो रहो, कहाँ से चले रहो। मिलती है आपको ये कहानियां, कहाँ से मिलती है इतनी यूनिक? री कहानियां इनकारनेशन, सब अमेरिकन लड़का शादी करने के लिए इंडिया आए, या समाज, कालीचरण, कितनी सारी कहानियां, सौदागर अगर फॉर आप, दैट मैटर। हमने कहानियां फिल्मों जो है लार्जर देन लाइफ बनाई है, क्योंकि सिनेमा था, होता भी लार्जर जी देन जी लाइफ है, लेकिन उसका जी। जो मूलभूत कहानी होती है वो हम समाज से ही लेते हैं। अगर प्रदेश की कहानी आप जानना चाहें, तो ये कहानी मेरे एक मित्र जो हैं उनके फादर की कहानी है, जो लंदन अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में अभी भी रहते हैं। ये बहुत बड़ा परिवार है, जो अमरीश पुरी का परिवार दिखाया मैंने हाँ प्रदेश जी में, हाँ जी हाँ जी। वो परिवार आज भी वहां पर है। एक टंडन फैमिली है लॉस एंजलिस में, एंड बहुत बहुत ही अच्छे, मतलब 3 जनरेशन 4 जनरेशन में वो साथ में रहते हैं। लेकिन वो चारों जनरेशन का जो फर्क मैंने देखा, और उनके पिता का व्यथा देखी, कि वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस देश में आया तो सही, पैसा भी मैंने मिलियनर मिलियनर बन गया मैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे जो हैं सब मेरे अमेरिकन हो गए हैं। ये उनकी व्यथा थी। मैं चाहता जी हूँ कि एक भारत से कोई लड़की लाई जाए, और जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हमारे दूसरे आने वाली जनरेशन आगे बढ़े। ये कहानी जो है ये रियल कहानी है, एक आदमी की व्यथा है, उसके ऊपर जी। मैंने ये फिल्म बनाई परदेश। तो सारी कहानियां कहीं ना कहीं से मैं, हम जब लोगों को सुनते हैं उनकी बातें, या कहीं पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं, तो उसमें से हमको प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा को फिर हम लोगों के प्रति अपना फिल्म बना के उनको दिखाते हैं। सर कर्ज जैसी फिल्म जब आपने बनाई, कि मतलब इतनी लार्जर देन लाइफ और री इनकारनेशन, तो क्या आप बिलीव करते हैं कि री इनकारनेशन होती है? बचपन में तो यही कहा गया था हमें,
कि पिछले जी जन्मों का फल मिलता है, पिछले जन्म में ये जी था, पिछले जन्म में वो था। तो जहां तक जी बच्चे थे तब तो बहुत बिलीव करते थे, जब तक रैशनलाइजेशन हुआ तो भी ये हुआ कि चलो एनर्जीज हैं, एनर्जीज प्लेनेट्स में घूमती हैं, फिर इधर से उधर जाती हैं, अलग 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 बॉडी में चली जाती हैं, तो कोई एक आध बॉडी में आ भी जाएगी, आ भी जाती होगी। तो ऐसा रैशनलाइजेशन भी देखा। और फिर फिल्मों में ये एक सब्जेक्ट ऐसा था जो बहुत पॉपुलर था उस जी समय में, कि जी री इनकारनेशन। जी लेकिन वो री इनकारनेशन जब भी होता था तो मैं ये देखता था कि जब भी अगर दिलीप कुमार की मधुमती है, तो अगर जी वो उनकी मृत्यु है, तो दूसरे जन्म में भी दिलीप कुमार पैदा कैसे हो सकते हैं? सेम फेस और सेम बॉडी कैसे हो सकती है? अगर क्या बात है आत्मा सर, ने भ्रमण सो ट्रू, है, सो और ट्रू भ्रमण सर। करके दूसरे दूसरे जन्म में आया, तो उसका तो शरीर अलग होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो गया जब वो मर गया। तो उस वो चीज जो थी, मुझे लगा कि ये फिल्म एक नई तरीके से बन सकती है कि अगर मैं 20 साल, मरने के 20 साल बाद मैं अपने घर पहुंचू और देखूं मेरा पूरा घर बदल गया है, लोग बदल गए हैं और बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। जो मैं छोड़ के गया था वो घर है ही नहीं, वो दुखों और गरीबी से लुप्त हुआ पड़ा है। तो मेरी क्या बताओगी, ये आइडिया से मुझे कर्ज फिल्म बनाने में प्रेरणा मिली। फिर मैंने वो उसको जो म्यूजिक। रिकॉर्ड, तो सर एक और सवाल यहाँ आया है मेरे एफबी पे, अरे मेरे इंस्टा पे, कि इतनी हीरोइंस को आपने इंट्रोड्यूस किया, इतने बड़े बड़े स्टार्स आपने बनाए, तो कैसे वो लगता है कि इसमें स्टार मटेरियल है? आपको तो कितने लोग मिलते होंगे, कितने लोग आपको ऑडिशंस देते होंगे, सब आपके पास आते होंगे स्टार बनने के लिए, लेकिन उसमें से एक लड़का जैकी श्रॉफ बन सकता है या एक माधुरी दीक्षित बन सकती है, ऐसा कैसे पता चलता है सर? क्या होती है वो क्वालिटीज? देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं जो स्टार बनते हैं। जी एक पोटेंशियल एक्टर होते हैं, you know, जो कि हर सीन को अच्छे तरीके से, वो एक होता है इनबॉर्न टैलेंट होता है, जैसे सिंगिंग है, जी इमिटेटिंग है, लोगों की जी नकल, और कोई भी सीन को अच्छे परफॉर्म कर लेना, देयर इज अ टैलेंट, उसको बोलते हैं एक्टर। और एक चीज होती है प्रेजेंस। जब आप किसी के प्रेजेंस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत में, और अपनी बॉडी लैंग्वेज में, ये आम लोगों से थोड़ा सा अलग है, ये प्रभावित है, ये प्रभाव डालता है, ये इफेक्ट, ये प्रभाव 10 आदमी में बैठा हुआ, लोग बार बार थोड़ी देर बाद उसी को देखते हैं। हम्म। है ना? जब आप 10 आदमी में बैठे बैठे थोड़ी देर बाद उसी को देखेंगे, मुड़ मुड़ के तो वही नजर चली जाती है। हाँ, सही तो बात है सर, बहुत सही वो बात है। हीरो है, वो हीरोइन है। बाकी शीशे में तो मैं सारा सब हीरो है मेरे ख्याल में। लेकिन एक पर्सनल प्रेजेंस, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसका देखने जी का तरीका, उसका सोचने का तरीका एक अलग होता है 10 आदमियों से। तो आप अपनी सभा में भी देख सकते हैं, आप अपने 10 घर में बैठे हुए अगर 10 मेहमान आए तो आप भी पता कर सकते हैं, है ना? एक वो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि अब इसको एक्टर बनाते हैं, तो एक्टर बनेगा तो ये हीरो और स्टार बन जाएगा। और एक जो एक्टर होता है वो सब तरह के कैरेक्टर कर सकता है, वो कभी हीरो भी बन जाता है, कभी साइड हीरो भी बन जाता है, कभी कैरेक्टर एक्टर भी बन जाता है। उस तरह के भी एक एक्टर होते हैं। एक्टर वर्सेस स्टार की ये दो श्रेणियां हैं जो हम उस तरीके से उसको नापते हैं। सर, बार बार लोग पूछ रहे हैं, आपने कई बार बताया है, फिर भी यहाँ वही सवाल फिर से आ रहा है कि दिलीप, यूसुफ साहब और राजकुमार को जब आपने इकट्ठा किया तो कन्विंस कैसे किया? यहाँ बार बार यही सवाल सब पूछ रहे हैं सर। अरे क्या सवाल पूछ लिया आपने। मतलब मैं आपके इंटरव्यूज में सुन चुके हैं, फिर भी वही सुनना है, वही जानना है, तो प्लीज बताइए सर। ये जब फिल्म लिखी थी मैंने, सौदागर, जी तो पूरी जब लिखी तो मैंने विचार में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी कोई एक्टर या आर्टिस्ट तंग करेंगे, क्योंकि जो तंग करते थे उनके साथ मैं काम भी नहीं करता था। तो मुझे मालूम था कि ये वेटरन है, जिंदगी देख चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, तो ये कर ही लेंगे इसी। तो मैंने बोला पहले कहानी पे काम करते हैं, क्योंकि सुनानी तो पड़ेगी कहानी भी और स्क्रिप्ट भी। उस पर मैंने जी काम किया, लेकिन काम जब मैं खत्म कर चुका था, मुझे पता लगा कि जिस एक्टर के बारे में तुम सोच रहे हो, दिलीप कुमार, राजकुमार, ये तो आपस में 30 साल हो गए बातचीत नहीं करते,
बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, कहीं किसी शादी में भी मिले तो दूर से दूर चले जाते हैं, और इनके तो संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी चिंता हुई, तो मैंने फिर दोनों आर्टिस्ट से जाके पूछा, और मैंने कहा साहब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आप फिल्मों में काम करना है, अगर आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, मैं फिल्म बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे बाद में मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए काजल जी, क्या है, जीवन में जी जब भी क्राइसिस आए ना, उसको मैंने एक ही चीज से मैंने युद्ध किया है, वो है सच्चाई से। सीधा सीधा बोल दिया, सत्य की कोई पावर, जैसी पावर ही नहीं, शक्ति नहीं है, आप कह सो दीजिए। ट्रू सर। जब मैंने कहा उनके मुंह पे कहानी सुनाता ही, तो वो दोनों हैरान रहे। मैंने बोला साहब मुझे लोग कह रहे हैं कि ये पिक्चर नहीं बनेगी क्योंकि आप लोगों की बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो आप कहिए तो मैं पिक्चर नहीं बनाता, आप कहिए तो मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे आपका दोस्ताना चाहिए, दोस्तों की पिक्चर है। और दोनों ने मुस्कुरा के मुझे हाँ कर दी। तो ये जो बात सच सच बोलने की है, फिर मैं अपने तरफ से एक बहुत ही कर्मठ और एक कमिटेड फिल्म मेकर हूँ। तो जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो फिर मेरा जीवन भी वही होता है, तो वो देखते हैं इस लड़के का जीवन इस पिक्चर में लगा हुआ है, ये हमसे कोई बेईमानी नहीं करेगा, किसी के लिए फेवर नहीं करेगा। बल्कि राज पिक्चर के रिलीज के बाद राजकुमार जी, जो हमेशा इस बात से परेशान थे कि सुभाष घई का फेवरेट दिलीप कुमार है, शायद मेरा रोल इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जब उन्होंने पिक्चर देखी और लोगों ने उनको फोन किए, तो उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के साथ एक छोटा सा गोल्ड मेडल भेजा कि, और मुझे चीफ कहते थे, चीफ यू हैव वन। मैंने सुना है कि लोग मेरी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं ऐसा कुछ लिखा उन्होंने, मजाक में। मेरी भी राजकुमार की भी तारीफ हो रही है तो मैं हंस पड़ा उस वक्त। मैंने उनको फोन किया, फिर उनको मिला मैं तो, लेकिन उनका जो गोल्ड मेडल आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी आप देखिए कि उन जिनको इतना डर था, मैं उनसे हमेशा कहता था अब मेरे पे भरोसा कीजिए, बस होगा, मेरे पे छोड़ दीजिए, और वो हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पर बहुत बड़ी आपको लगे कि ये नहीं हो सकता है, वहां जाके कह दीजिए ये मेरे से नहीं होगा। इफ यू डोंट नो ए थिंग, से आई डोंट नो। इफ यू कांट डू ए हाउ थिंग, वेरी से आई वंडरफुल। कांट डू इट। अदर पर्सन विल हेल्प यू कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझे आता नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें कहने की। जैसा जैसे ये कोई झूठ बात नहीं है कि आजकल जमाना नहीं था सच बोलने का, सुभाष घई साहब आपको क्या पता हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, हमारे बच्चे के साथ नहीं। आप बच्चे को बोलो दृढ़ होकर संकल्प करके एकदम सच बोल के देखो, आस्ते आस्ते तुम जीत जाओगे। दो जगह हारोगे ना तो क्या होगा, लेकिन जब आपको पता लगेगा यू आर ए पर्सनैलिटी हु स्पीक्स ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब बदतमीजी से So नहीं true है, sir. ट्रुथ का I मतलब am known amongst my listeners कि मैं कभी कभी झूठ नहीं बोलती, और बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े सवालों के सामने भी मैंने सही कहा है, इसीलिए इतने लोग सुन रहे हैं सर। और जी। मुझे भी यही लगता है कि झूठ बहुत लंबा साथ नहीं देता है, एटीट्यूड सच नहीं ही साथ में होता। चलता है। झूठ झूठ का मतलब ये नहीं, सच का मतलब ये नहीं कि सच का मतलब कि आप बदतमीज हो जाए, नहीं बदतमीज नहीं, बदतमीज। हम्बल नहीं। हम्बल रह के भी आप सच सच बोल सकते हैं, सच बोलने की करेज रखनी चाहिए आपको, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। प्रॉब्लम सही ये है बात है। कि पिछले सालों में कि कुछ ज्यादा कंपटीशन, पॉपुलेशन बढ़ने से, कंपटीशन बढ़ जाने से, लोग ज्यादा आ जाने से हम घबरा गए हैं, और हम उस कंपटीशन में हम जो हमको जो जैसे सिखाता है हम उस पर चलना शुरू कर देते हैं, और अपना कैरेक्टर्स खुद में खो देते हैं। अपना अस्तित्व मत खोइए, अपना एक पर्सनैलिटी बनाइए, एक अच्छे इंसान की, एक सच्चे इंसान की। लोग आपको मदद करेंगे ही करेंगे, एक नहीं, दूसरा नहीं, मैं पांचवा मानती हूँ इस बात को। करेंगे करेंगे। इस बात को मैं डेफिनेटली मानती हूँ सर, और मेरा भी जिंदगी का यही एक्सपीरियंस रहा है। तो एक और बात सर मेरे मन में आती है, ये मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, मतलब इंडस्ट्री का कोई ऐसा नहीं है जिसके जी। साथ आपने काम किया। आपका फेवरेट स्टार कौन रहा, मतलब इसके साथ तो मजा आ गया, ऐसा कौन? क्योंकि एक अगर हम लेना हो लोग, तो, आई एम साउंड्स वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल। नहीं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब कहानी लिखते हैं तो हम जो उसको सूट करता है उसको एक्टर को लेते हैं, वही चाहे स्टार हो चाहे नॉन स्टार हो। जी फिर जी जो स्टार होते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं,
तो आपके फेवरेट तो तकरीबन जब बनाते हैं तो हो ही जाता है। और डायरेक्टर की पोजीशन हमेशा स्टार से ऊपर होती है और स्टार उसकी जी इज्जत भी करता है, जैसे जी सर, कि जी डायरेक्टर सर, डायरेक्टर एवरीथिंग इन द फिल्म मेकिंग। जी लेकिन जब आप पूछते हैं कि आप फेवरेट, फेवरेट तो मेरे सभी हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो जिससे मैंने कुछ सीखा हो, जो मैंने सीखा है जिस एक्टर से, वो मेरा फेवरेट इसलिए एज ए पर्सन भी। उनका नाम है दिलीप कुमार। मैंने 3 फिल्में की उनके साथ, दिलीप कुमार साहब के साथ, और मेरे जी जीवन की काया पलट गई। जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो ये क्राइसिस में बात सोचना, जो मैं अभी आपको बातें कर रहा हूँ, ये दिलीप साहब जी से मैंने 12-15 साल काम किया। पहले फिल्म बनाई विधाता, फिर कर्मा, फिर सौदागर। तो उनका एसोसिएशन, वो सीनियर थे मेरे इसी, तो मेरा उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, छोटे भाई की तरह समझा, और फिल्मों के बारे में भी समझाया कि क्योंकि उस समय के वो सबसे बड़े सुपरस्टार तो वही रहे हैं, दिलीप कुमार साहब। आज भी जी सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े एम्परर हैं एक्टिंग। लेकिन जो बातें मैंने उनसे सीखी वो मुझे जीवन में बहुत काम आई, फिल्म मेकिंग में भी और जीवन में भी। और जब आपको कोई ऐसा सीनियर आदमी मिल जाता है तो एक इनडायरेक्ट गुरु होता है आपका, किसी जब इनडायरेक्ट गुरु होता है उसको कभी मत छोड़िए। मेरे आप सबसे बच्चों से सलाह है कि एक गुरु जरूर पकड़िए जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज हो और आपको लगे कि मैं सीख सकता हूँ। तो हर हर हालात में, ऐसी हर क्या बातें, मैं ऐसी उन्हें क्या बातें सर, अगर ये बातें आप शेयर कर सके कि ऐसी 2-4 क्या बातें हैं जो आप उनसे सीखे हैं और आज तक आप उनको याद रखे हैं? सबसे पहली बात मैंने उनसे सीखी, कभी जी घटिया बात नहीं करना, घटिया बात नहीं करना और घटिया आदमी का साथ नहीं देना। बात बहुत उम्दा होनी चाहिए, बात एक अपनी अस्तित्व से ऊपर बढ़ के होनी चाहिए। छोटे से लालच के लिए, छोटी सी चीज को पाने के लिए अपने आप को नीचे नहीं गिराना, कभी मत गिराओ। दूसरी ये जो कि बड़ी मुश्किल है हमारे भाइयों को, अहमदाबाद के भाइयों को सहना समझना, कि पैसे को कभी कि पैसे को कभी कि पैसे को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देने का, पैसे को सर कभी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंस। बहुत ही मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजराती लोग एक ही किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है पासबुक। हाँ, तो वो उन्होंने समझाया कि पैसे की कभी नहीं, काम काम में एक्सीलेंस कैसे हो सकते हो, पैसा आएगा। बोले पैसा आपको इतना फॉलो करेगा कि आप खुद घबरा जाएंगे, इसलिए तुम पैसे को फॉलो कर, कहते हैं ना लक्ष्मी को अगर आप पीछा करो तो लक्ष्मी भागती है, लक्ष्मी को छोड़ दो तो लक्ष्मी आपके पीछे आती है। इस आधार पर वो मुझे समझाते थे कि नेवर वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर द वर्क, एक्सीलेंट ऑफ वर्क, ए न्यू वर्क, इनोवेटिव वर्क, जिसके लोग देख के सोचें कि क्या बात है। ये बात मैंने उनसे बहुत जबरदस्त सीखी। अब ये 2 बातें देखी कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जी और सर, आदर करना हर चीज का, नो एटीट्यूड, सम्मान करना सब। वो जिस तरह से बात करते, छोटे से सर्वेंट से भी वो इतनी तमीज से बात करते थे, यू नो। अगर छोटे से सर्वेंट से भी बोलना, सर हजूर बहुत देर हो गई, बहुत भूख लग रही है, आपकी तरफ देख रहा हूँ ललचाई नजरों से मैं, अगर चाय मिल जाती तो अच्छा होता। चाय मांगनी है उन्होंने, ये भी बोल सकते हैं टी बॉय को, भैया एक चाय ले आना, पर उसको भी अच्छे तरीके से कहेंगे, भाई मेरी ललचाई नजरें हैं, बड़ा थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो अगर एक तो करे नहीं साहब मैं अभी लिख गया, तो एक स्माइल देना और लेना, वो एक सबको उनकी आना चाहिए। अदा दे, वो सबको आना चाहिए। सही बात है सर। और एक्चुअली तो सच में क्या ले और दे सकते हैं आप, स्माइल ही दे सकते हैं, स्माइल, बाकी तो कुछ ये कैरी ऑन है ही नहीं आपके पास। आपने देखा होगा जब से मैं आऊं तब से स्माइल है। सही बात है सर। तो वैसे तो पिता को सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं पूछ सकते, फिर भी मैं जानना चाहूंगी सर कि एक एक बच्चा थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, थोड़ा ज्यादा आपके दिल के करीब होता है। तो इतनी सारी फिल्में आपने बनाई, आप खुद कौन सी फिल्म के बहुत ही करीब है? कौन सी फिल्म आपको लगती है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है? राज कपूर साहब ने एक बार कहा था, और बात से मैं एग्री करता हूँ, कि जो जी बच्चा नहीं चलता है वो आपके दिल के करीब हो जाता है। जो बच्चा को सफलता नहीं मिल पाती है
या ठीक नहीं चल पाता है तो आपको उससे बहुत प्यार। तो उस तरह की एक फिल्म मेरी कृष्णा भी थी, इसी जी एक मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी मैंने बनाई थी। तो ऐसे 2-3 फिल्में हैं जो नहीं चली, क्योंकि मैंने अपने दिल से बहुत प्यार से बनाई थी और बहुत मेहनत करके बनाई थी। लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा है। इसी फिल्म का ना चलना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिल्म का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी कभी कभी हम फिल्में ऑडियंस के समझ के आगे फिल्म बना देते हैं, कभी हम समझ के पीछे बना देते हैं। समटाइम वी आर टाइम अहेड, समटाइम बिहाइंड द टाइम। तो फिल्में चलते हैं बॉक्स ऑफिस में, कभी नहीं चलती। लेकिन अगर जी वो अच्छी पिक्चर है तो हमेशा चलती ही रहेगी। जो यादें फिल्म है, मैंने कहा जिस वक्त रिलीज हुई थी, या कर्ज फिल्म है आप जिसकी बात कर रहे थे, कर्ज फिल्म जी पहले 2-3 हफ्ते चली नहीं थी, बहुत बड़ी हिट नहीं थी। लेकिन आज तक 40 साल हो गए उस फिल्म को बने हुए, आज सबसे ज्यादा डिमांड हमारी कंपनी में कर्ज फिल्म की है। चाहे उसका म्यूजिक हो, चाहे उसकी फिल्म हो, चाहे उसकी रिपीट वैल्यू हो। तो ये समय भी उसको पकड़ता है। कभी कभी वो फिल्में जब असफल हो जाती हैं बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन आपको मालूम है कि एज ए क्रिएटिव पर्सन ये फेल नहीं है, ये बहुत अच्छी फिल्म है और वो अपना रंग लेके आती है, कोई बरसों के बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल के बाद। तो सर आपका संगीत से बहुत लगाव है, आपकी फिल्मों का म्यूजिक बहुत खास होता है और सालों साल लोगों को याद रहता है। आप खुद भी म्यूजिक के साथ जुड़े हैं, आप क्या सीखे हैं म्यूजिक, या आप भी बजा लेते हैं, गा लेते हैं? म्यूजिक तो हर भारतीय का एक जीवन का एक अंग है, चाहे वो भजन के रूप में हो, श्लोक के रूप में हो, आजान के रूप में हो। संगीत से तो हम बड़े हुए हैं। भारत में नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र से ही जीवन आगे चला है। गरीब जी से गरीब आदमी भी अपना एक फोक सॉन्ग गा के अपना शाम अच्छी गुजार लेता है। थका हुआ भी आदमी को अब अपना गीत गा के कर लेता है। तो ये बहुत ही सबलाइम, एक आध्यात्मिक चीज है मनुष्य में, खासकर भारतीय में। वो उसे ना गाना आता और कोई गाने सुनने में आनंद आ जाता है उसको। मैं ऐसा विद्यार्थी था कि मुझे म्यूजिक जो है बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करता था। सितार से, पहले हारमोनियम से, फिर आस्ते आस्ते तबले से, तो मैं ग्रो ही करता गया वहां से। तो इतना था कि फिर मैं उसका सेल्फ एजुकेशन जैसे होती है ना, कि उसमें जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उसकी तरफ और ध्यान से रिसर्च करना शुरू करते हैं। मैंने म्यूजिक सीखा नहीं, लेकिन मैंने जब म्यूजिक सीखा तो किन लोगों से जो म्यूजिक जानते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर मिले मुझे, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत परेलाल, ए आर रहमान, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। हर गाने में कम से कम मैंने 100-125 गाने रिकॉर्ड किए होंगे और पिक्चराइज किए होंगे। 125 गाने में 125 चीजें सीखी और आस्ते 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 करते आज मेरा ऐसा है कि मैं म्यूजिक की पहचान और म्यूजिक के जानकार कह सकता हूँ। एक अशोक जी पूछ रहे हैं सर कि नए फिल्म मेकर को क्या नहीं करना चाहिए? नए फिल्म मेकर को एक बात जो नहीं करनी चाहिए कि जो उसके खुद के आइडियाज हैं वो हवा में नहीं उड़ने चाहिए। वो उसका अप्रूवल पहले उसे अपने परिवार और दोस्तों से लेना बहुत आवश्यक है, जो सब्जेक्ट वो ले रहा है। कई बार क्या होता है, नया फिल्म मेकर अपने आप में इतना उस युवा की तरह होता है जो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, है ना। जी लेकिन आपकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट या स्टोरी ले रहे हैं, वो लाखों लोग को दिखाई जाएगी। तो पहले जो आपके आसपास के 10 लोग हैं, अगर वो उसमें रुचि दिखाते हैं तो उसी कहानी पे काम कीजिए। और दूसरी बात, आप जो कहानी लिखें वो आपके जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। मतलब आपके गांव के, आपके मोहल्ले की, आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की, आपके समाज की, आपकी जाति की, उसकी कहानी जब लेंगे उसको बोलते हैं रूटेड स्टोरीज। टेक रूटेड स्टोरीज, डोंट टेक वेस्टर्न स्टोरीज, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर फिल्म्स, मेक योर ओन फिल्म। अपने ही जो मतलब ऐसी कहानी जो आपके डीएनए से निकली हो।
हाँ जी हाँ, जब आप पहली बार बनाएंगे तो आपका बहुत नाम होगा और सच्ची भी लगेगी, क्योंकि आपने उसको अनुभव किया है, उस सब चीजों को देखा है, आप रहे हैं उसमें। ये दो बात। नायपॉल कहते हैं, एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट है नायपॉल, जो कहते हैं कि अगर आत्मकथा का टुकड़ा नहीं है तो वो नॉवेल कभी चल नहीं सकती। सही, कोई भी कहानी कहीं आप होने चाहिए अपनी कथा में। जी, अपनी कथा में तो आप होना चाहिए। इसीलिए आप शायद हमेशा अपनी कथा में एक बार जरूर दिखाई देते हैं सर। तो हम सब आपको ढूंढते हैं। एक्चुअली ऐसे भी दर्शक हैं जो मुझे लिख रहे हैं कि लोग इंतजार करते हैं कि कब आएंगे सुभाष घाई अपने पिक्चर में, कब आएंगे। तो ये भी एक सरप्राइज होता है ये सर आपका ये आना। ये उनकी मोहब्बत है, और जी आप कह सर। लीजिए मेरी मेहनत है कि मैं अपनी फिल्में इस तरह से रोचक तरीके से, एंटरटेनमेंट तरीके से बनाता हूँ कि उनको जब फिल्म से प्यार होता है तो फिल्म के बनाने वाले से भी प्यार हो जाता है। नहीं तो लोग 500 शॉट्स में आए तो भी नहीं अच्छा लगता, और एक शॉट में आए तो भी अच्छा लगता है। और मैं बहुत आभारी महसूस करता हूँ और खुशनसीब महसूस करता हूँ। आई एम ब्लेस्ड दैट पीपल लव मी ऑन द स्क्रीन आल्सो as good as They my films. wait for you sir. That's what they are writing, that they Thank wait for you कि कब आएंगे अपनी पिक्चर में। thank you. सर एक और सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि आप जब आप किन राइटर्स से या डायरेक्टर्स से इंस्पायर्ड है? बहुत, अब तो बहुत सारे मेकर्स हैं जो आपसे इंस्पायर्ड, लेकिन अगर आप अपने बारे में कहना चाहें तो किससे इंस्पायर्ड है सर? बहुत से डायरेक्टर्स थे, जी जी इंटरनेशनल डायरेक्टर्स भी थे, जिसमें मेरे जी फेवरेट डायरेक्टर थे डेविड लीन। डेविड लीन एक डायरेक्टर थे जो कि बड़े कैनवास से पिक्चर बनाते थे। उनका जी कैनवास और पिक्चर्स क्यू बहुत स्ट्रांग होता था। और हमारे जो हिंदुस्तानी डायरेक्टर्स थे, महबूब खान साहब एक ऐसे जी डायरेक्टर थे, मैं बहुत से उन्होंने बड़ी अलग अलग तरीके से फिल्में बनाई। गुरुदत्त थे, आप कह सकते हैं, बिमल रॉय थे। जी तो मैं एफटीआई में पढ़ा, जब मैं एफटीआई में पढ़ा 2 साल रहा, तो वहां पर मैंने बहुत से फिल्मकारों की फिल्में भी देखी। मुझे चांस मिला कि मैं सब दुनिया की फिल्में देख सकता। फिर पूरे सिनेमा ने मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो जहां तक आप बचपन था ना, कॉलेज में जब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, तो कुछ फिल्में जैसी थी जो कि मैं समझता था कि ये डायरेक्टर्स जो हैं बहुत दुखों की गहराई में भी जाते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। तो काफी डायरेक्टर्स ने मुझे प्रभावित किया। मेरे विजयानंद भी मेरे फेवरेट थे, उसी डायरेक्टर जो थे, और राज कपूर साहब थे। बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं आपके प्रभाव में। कभी सर कोई बायोपिक बनाने का ख्याल आया? अभी किया क्या है मैंने जो बायोपिक बनाऊं? नहीं, आपकी नहीं, किसी और की बायोपिक आप डायरेक्ट करें, लिखें, ऐसा कोई कैरेक्टर देखिए, जिसके बारे में आपको सॉरी सर। मैं बायोपिक के बारे में बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ दिल से। जी विचारों से जी करता हूँ कि प्रेरणा जी मिलती है लोगों को, इससे प्रेरणा मिलती है। जी क्योंकि जब फिल्म बनती है ना, उसमें क्या होता है कि 60% सच होता है और 40% झूठ होता है। जब वो मिक्स करना पड़ता है तो फिर वो बायोपिक कहाँ रही? वो तो एक हाँ, वो फिल्मी सिनेमैटिक लिबर्टीज सिनेमैटिक तो आपको लिबर्टी, और लेनी उसको आपने फिर एक अलग तरीके से सोच दिया। तो बायोपिक में जो एक करेक्ट सत्य जो है, वो सत्य तरीके से दिखाई जाए, फिर तो बायोपिक ठीक है। किसी की जीवनी दिखाई, और गांधी जी को अगर मैंने दिखाना है, तो गांधी जी को अगर मैंने साथ में अपना गीत गाने, त्योहार, शादियों के सीन रखने शुरू कर दिए तो क्या होगा? गांधी जी को मैं कैसे पोर्ट्रेट कर सकता हूँ? आई कांट जी से कि गांधी जी वहां पर गए थे और वहां गरबा हो रहा था और पता लगा गांधी जी की फिल्म में 3 गरबा सॉन्ग्स रख दिए मैंने। तो वो मुझे नहीं चाहिए। गांधी जी की फिल्म गांधी जी की बने। अभी मैंने गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाई है, आपको मालूम है, गांधी एक पर्सपेक्टिव, गांधी एक दृष्टिकोण। ये मैंने 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई है, फॉर दूरदर्शन बनाई थी, और वो रिलीज भी हुई है, और अभी आने वाले स्कूल्स और कॉलेज में भी दिखाई जाने वाली है। उस फिल्म का यही दिखाया कि गांधी जी के दृष्टिकोण, गांधी भी एक दृष्टिकोण से है। कुछ लोग कैसे देखते हैं उनको, को कैसे देखते हैं, कि आज के जो यंगस्टर है 15-16 साल के बच्चे, वो गांधी जी को कैसे देखते हैं। 15 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गांधी जी के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, और बहुत इंटरेस्टिंग बनी है। जब मौका मिलेगा तो आप जरूर देखिएगा। मैं जरूर देखूंगी सर। और एक सवाल आपसे पूछने का मुझे मेरा अपना मन है कि सर ऐसा कोई सब्जेक्ट अभी भी मन में है
जो आपको लगता है कि ये मैं बनाना चाहूंगा? ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपने आपने संभाल के रखा हो, किसी देखिए, दिन और आगे बनाएंगे? जैसे जैसे आप सीनियर हो जाते हैं जीवन में, वैसे वैसे जी आप जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं। आज देश के प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ कि मेरे देश में जो इश्यूज हैं, सामाजिक इश्यूज हैं, वो किस तरह से हल किए जाए। जैसे एक इश्यू बहुत बड़ा है, वो है हमारी पॉपुलेशन का। इसी जी कि आज हम अफोर्ड कर नहीं सकते हैं और बच्चे हम पैदा कर देते हैं और बाद में दुखी होते हैं। ये कितना बड़ा सवाल है इसी। अगर हम बच्चों को पाल नहीं सकते, लेकिन बच्चों को पैदा करने का हमको क्या हक है, ये एक इशू मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। और इस तरह के और भी बहुत से इश्यूज हैं सामाजिक। इस सोचने की शक्ति जो है, विवेक क्यों नहीं है, जो विवेक होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें भी एक विजडम क्यों नहीं है। तो विजडम की एजुकेशन होना और रिश्तों को और अपने देश के प्रति क्या सोचना। जब मैं दुखी हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कोई भी काम सरकार करती है या कोई भी काम, कोई आदमी अच्छा काम करता है, उसके बारे में डिबेट होती है। भगवान है या नहीं, इसके बारे में डिबेट होती है। तो एक बड़ा अजीब लगता है। आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट, आप नेट पे जाइए, आपको कोई भी आदमी सही बात भी करे, बहुत सही बात कर दे जिसमें पूरा देश मानता हो, उसमें भी डिसलाइक्स आपको ऐसे मिलेंगे। सही बात है सर। ऐसे मिलेंगे, ऐसे 4000 मिलेंगे, लेकिन 200 ऐसे भी मिलेंगे। ये क्या बात हुई। सरकार कैसे चलनी चाहिए मैं कैसे सोच सकता हूँ। मुझे, मेरा काम है फिल्म कैसे बननी चाहिए वो मैं सोच सकता हूँ। जी सर। मैं वो ये कैसे होना चाहिए, सरकार को कैसे करना चाहिए, पोस्ट पॉलिटिक्स को कैसे चलना चाहिए, और पुलिस को कैसे काम करना चाहिए। उनका काम है, उनको करने दीजिए यार। अच्छा होगा बुरा होगा तो उनकी जगह कोई भी होता दूसरा, जो भी खराब कर सकता था वो भी सही कर सकता था। जो हालात हैं वो हैं, लेकिन आदमी आगे एक काम कर रहा है तो उसको करने दें। ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है। हम अपना काम कितना अच्छा कर सकते हैं, वही हमारी देश सेवा है। हमारी एबिलिटी जो है, उसके अंदर मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने दिए हुए समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, वही वही देश सेवा है। बाकी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना एक बड़ी इमेच्योर बात है। वो अपने जी आप सर। को कलेश देना और देश में कलेश पैदा करने वाली बात है। रिस्पेक्ट हमारे ऑल, एक बहुत एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, हमारे एक बहुत रिस्पेक्ट। पॉपुलर हमारे एक बहुत पॉपुलर ह्यूमरिस्ट है। वो हमेशा कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, क्या करूं, तो बोले किसी को नड़ो मत, किसी किसी की जिंदगी में टांग मत अड़ाओ। अगर इतना कर सकते हो तो आप बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हो। वो बार माइंड बार योर ये ओन कहते हैं। बिजनेस, माइंड योर यस ओन बिजनेस। यस सर। अमेरिका जो है, आपको मालूम है कि इतना सालों में इतना तरक्की क्यों किया है। उसमें एक ही फार्मूला पे काम करते हैं लोग, माइंड योर ओन बिजनेस, उनका फार्मूला है। अभी हमारा ये है कि माइंड अदर्स बिजनेस। सर हम बताएं, हम हमारी ओपिनियन बहुत सुनिए। सारे लोग आपको हमारी प्यार भेज रहे हैं सर। बहुत सारे लोग आपको प्यार भेज रहे हैं, बार बार नमस्ते कह रहे हैं कि बहुत। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत, काश मैं वहां होता और अहमदाबाद में आपको पर्सनली भी मिल सकता था, लेकिन ये भी आजकल तरीके का, आजकल तो मैं अपने भाई और बहनों को भी इंस्टा के द्वारा ही मिल रहा हूँ। तो सर काश मैं आपको आपको देख सकता। खाने का बहुत शौक है। यू लव मुझे, गुड फूड। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बस है। खाने का ही शौक नहीं है। मेरी बीवी जो है, मेरी पत्नी है, वो इसी बात से नाराज रहती है कि वो इतने शौक से खाना बनाती है और मैं कभी ये पूछता नहीं कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। कि उनका ये कहना है कि आप डिमांड नहीं करते। मैं बोलता क्यों डिमांड करूँ, आप अच्छा बना रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। देखिए, मेरे लिए जीवन जो है, मैं एक शब्द में कहता हूँ, जी एक गाड़ी है दूर जाने के लिए, एक घर है आराम से रहने के लिए, एक बिस्तर है सोने के लिए, खाना है खाने के लिए। इसके बाद तो सब तृष्णा ही तृष्णा है, लालच ही लालच है। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। है ना। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है यही मैसेज है जो ये लॉकडाउन ने हम सबको दिया है जी, बस ये कि जब आदमी अगर सोच ले इतना कि मेरे मिल को जाए। सीधी सादी जिंदगी में अपनी तृष्णा नहीं बनानी, मेरे को 4 होटल नहीं बनानी है, मेरे को ये 4 दुकानें नहीं बनानी, एक ही दुकान बनानी, एक ही घर बनाना है, इतना ही रहना है, मुझे इतने ही कपड़े चाहिए। मुझे दुनिया के साथ नहीं भागना है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे शोमैनशिप नहीं करनी है।
मुझे सुखी रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस एंड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग टू। एंड स्टिल इन योर प्रोफेशन यू आर नोन एज द ग्रेटेस्ट शोमैन। जी, मतलब आपको वो लोग, इसलिए क्योंकि मैंने बांटा है, अपनी खुशियां लोगों से बांटी हैं, मैंने सेलिब्रेशन किया है। जब भी मैंने पैसा कमाया है, आज मैंने विस्ली वुड स्कूल खोला है, इतना बड़ा, सारी संपत्ति मैंने अपने वहां पर लगा दी। आज 12 से आज आज हमारे 3000 बच्चे जो हैं उन डायरेक्टर्स और मीडिया के टॉप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जी जी, शिक्षा शिक्षा पा रहे हैं। बॉम्बे में 100 साल के बाद, 100 साल तक कोई फिल्म स्कूल था ही नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था कि जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, क्रिएटिव एंड परफॉर्मेंस पढ़ा है के बारे में पढ़ाए। उनको समझ नहीं आता था जी। बॉम्बे जाएं तो क्या करें, बेचारे यहाँ आके सिर्फ स्टेशन में बैठे रहते थे बेचारे। आज उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो ये यही मेरी एबिलिटी है, मैंने किया, ये मुझे खुशी देता है, ये मैं सेलिब्रेट करता हूँ। फॉर मी लाइफ इज सेलिब्रेशन। वंडरफुल सर। एक आखिरी सवाल, थोड़ा गंभीर, कि अब जब सिनेमा की परिस्थिति जो होने वाली है, जो आने वाले दिन है, थिएटर खुलेगा नहीं खुलेगा, शूटिंग होगा नहीं होगा, सब ओटीटी पे देख लेंगे। गुलाबो सिताबो भी देखिए सर, ओटीटी पे रिलीज हो रही है। तो आप इतने बड़े वेटरन और इतना आपने जो दुनिया देखी है, सिनेमा देखा है, क्या कहेंगे आप आने वाले दिनों के बारे में? और क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए इस समय को? आपने मीडिया में देखा होगा कि जो माइग्रेंट्स हमारे मजदूर बेचारे हैं भाई, जी कुछ लोग साइकिल्स पे गए अपने गांव, कुछ लोग जी, पैदल गए, कुछ लोग नदी पार के गए। तो क्या मतलब, इसका मतलब कि लॉकडाउन के बाद भी वो साइकिल पर जाएंगे अपने गांव, लॉकडाउन के बाद भी नहीं नदी जाएंगे, पार। नहीं वो जाएंगे। तो उनके लिए वो क्राइसिस कर लिया, जिनको रिलीज करनी थी उन्होंने कर दी, उनके लिए क्राइसिस था बेचारों के लिए। सिनेमा जो है वो एक उत्सव है। आप अब हर साल गरबा जाते हैं कि नहीं जाते? मंदिरों बिल्कुल में जाते हैं सर, जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? वो एक क्योंकि उत्सव है। सेलिब्रेशन। सिनेमा भी एक उत्सव है जहां आप जाके, वो फिल्म तो आप टेलीविजन में भी देख सकते हैं, सैकड़ों फिल्में हैं, लेकिन फिर भी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां तालियां मारते हैं, वहां हंसते हैं जोर से, 1000 लोग, 50, 100, 200, 500 आदमी बैठा होता है, जहाँ एक खाने को भी मिलता है, जब पॉपकॉर्न भी है, 4 दोस्त मिलके जाते हैं, घर से सज के जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? हम फिल्म देखने जा रहे हैं। फिर एक जी फिल्म सर, देख के, रेस्टोरेंट भी क्या होता है, घर में सबको खाना मिलता है, क्यों रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग? कि ताकि हम और भी लोग आके देखेंगे, बैठेंगे, हम बहुत से लोगों को देखेंगे। एक सामाजिक उत्सव है सिनेमा, वो कभी भी कमजोर नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो और बढ़ जाएगा, बेचारों को, लोगों को भूख है कि अब सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखें। तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ उसके बारे में। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी है, वो डिजिटल में आ गए हैं, तो वो डिजिटल भी रहेगा, डिजिटल क्यों नहीं, डिजिटल आज पैरेलल है, लेकिन डिजिटल इज ए होम एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट ए पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो देर इज ए पब्लिक आउटडोर एंटरटेनमेंट एंड होम एंटरटेनमेंट, बहुत फर्क है, और वो रहेगा ही बहुत रहेगा। धन्यवाद। क्या बात है सर, इतनी पॉजिटिव बात। एक अशोक जी ने आखिरी सवाल पूछा है कि क्या कोई मिडिल क्लास का लड़का विस्लिंग वुड्स में पढ़ सकता है? सुभाष घई चेयरमैन, वो भी मिडिल क्लास का ही है। जब हम लोग मिडिल क्या क्लास के, बात, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या बात है सर। तो जब आप ये कह रहे हैं, तो बिफोर वी क्लोज, एक अपने संघर्ष के बारे में भी बताइए सर। ये सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी, एक फिल्म मेकर के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आपने जो संघर्ष किया, आप आए इतना बंबई में, आप एक्टर बनने आए थे, तो ये बात भी बता दीजिए जाते जाते। तो आई एम श्योर आपको दांत में दर्द है, यू आर नॉट वेल, आई कि प्रॉमिस्ड यू टू कीप शॉर्ट, बट बहुत लोग पूछ रहे हैं सर। उसमें एक ही थीम है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोच लो, कोई कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबको मालूम है मेहनत करनी पड़ती है, सबको मालूम है कि सिंसियर रहना पड़ता है, ऑनेस्ट रहना पड़ता है, ये आप सबको मालूम है। पर आपको शायद एक चीज में जो आज शेयर लेके जाइए साथ में, वो कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं। क्राइसिस से कभी मत डरिए। क्राइसिस के टाइम पे यही टाइम है जिसमें आप सोचिए कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, अपने आप को डिस्कवर और रीडिस्कवर कैसे कर सकता हूँ।
क्राइसिस के टाइम में यू डिस्कवर रीडिस्कवर योरसेल्फ, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तकलीफें सबको आती हैं दोस्त, और आएंगी। उस तकलीफ को मैं हंस के, प्यार से समझ के, अच्छा तू आ गई, अब मैं तेरे को खुशी में बदलता हूं, मैं तेरे को अपनी सक्सेस में दिखाता हूं। अब असफलता में से आ निकाल देता हूं और सफलता लेकर आता हूं। ये जब क्या आप बात है। जब सोच लेंगे तो वो आ निकल जाएगी, फिर सफलता ही रहेगी, असफलता नहीं होगी। मेक योर क्या बात क्राइसिस है। अपॉर्चुनिटीज, ये फॉर्मूला है। वंडरफुल, वंडरफुल सर। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपको इतना दांत में दर्द है, यू आर नॉट वेल बट यू केप्ट योर कमिटमेंट। अच्छा हुआ अभी ठीक हो गया है, तो मैं बात कर रहा हूँ और आपका प्यार है, सब लोगों को मैं देख सकता हूँ। अपना प्यार भेजा है सर, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने धन्यवाद। इतना लव यू ऑल, समय लव यू दिया। ऑल, विश यू ऑल, बी थैंक यू ब्रेव, सर, बी स्ट्रांग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर।